Good morning, dear students. How are you and how are your families? I hope all of you are absolutely fine. Student, this is a very good news for you that your school, Amichand Sarvodaya Convent, is going to provide you online classes so that your study will be continuously. But before starting this class, I shall aware to you about coronavirus disease. Students, you know very well that nowadays we are fighting from coronavirus COVID-19. Students, it is a very viral disease. Uh, you watch and listen daily news that many people has died from COVID-19. Students, this disease affects to human respiratory system. So students, I am giving you advice to prevent to spread COVID-19. You should follow some precautions. To maintain your good health, you should follow these precautions. I shall tell you one by one. Number first, you should wash your hands with the soap and water properly. You should avoid touching your eyes, nose, and mouth. Avoid close contact. Maintain at least 1 meter distance between yourself and anyone who is coughing or sneezing. You should wearing mask. And next is you should stay at home and stay safe. Keep clean to himself and also keep clean your surrounding areas. And I'm sure that we shall overcome from this disease. ओके चलिए स्टूडेंट्स, आपको बहुत हॉलीडेज मिल गई हैं जिसमें आप सब बस रेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब आपको रेस्ट नहीं करना है। अब अपनी बाकी हॉलीडेज को वेस्ट भी नहीं करना है, हमें अपनी बची हुई हॉलीडेज को यूटिलाइज करना है। इसलिए बच्चों, अब आपको अमीचंद सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल आपको ऑनलाइन क्लास देने जा रहा है। आपको अमीचंद सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। अब आपको पढ़ाई में लग जाना है क्योंकि बहुत छुट्टी कर लिया है अपने। जितना काम आपको ऑनलाइन क्लास में दिया जाएगा उन वर्कशीट को ध्यान से देखना है, सुनना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। ऑनलाइन क्लास में आपको न्यू सेशन 2020 टू 2021 में न्यू कोर्स पढ़ाया जाएगा, इसलिए आपको डेली क्लास अटेंड करनी है और साथ साथ अपना वर्क भी करना है सो दैट स्कूल खुलने के बाद आप पर ओवरबर्डन ना पड़े। और एक साथ जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे तो स्टूडेंट आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि इतना सारा वर्क आपको जब मिलेगा ओवरलोड हो जाएगा तो आप एक साथ इतना सारा वर्क भी नहीं कर पाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपकी तरफ को भी देखना है, इसलिए हम आपको ऑनलाइन क्लास देने जा रहे हैं। और जो भी हम ऑनलाइन क्लास में आपको वीडियो सेंड करते हैं या वर्कशीट सेंड करते हैं, उनको आपको देखना है, सुनना है, समझना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस टू योर teacher, that you can ask without any hesitation and without any fear by sending voice message, students. Okay students, I hope you understand my point. Now I move to study point. Yes students, now we shall study today. It so happened supplementary reader in English for class 8th. यस स्टूडेंट, देखेंगे हम अपना फर्स्ट पेज। इट सो हैपन सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 8th NCERT। यस स्टूडेंट्स, this book number of contents 1 to 11. Today we shall discuss to the story number first, chapter first, how the camel got his hump. Students, name of the chapter is how the camel
got his hump. And this story is written by Rudyard Kipling. But before starting this story, I shall tell you about the writer Rudyard Kipling. Students, Rudyard Kipling was an English journalist, short story writer, poet, and novelist. He was born in India. So, students, now I move to explain this story. Name of the chapter: How the Camel Got His Hump. हिंदी मीनिंग इस चैप्टर का: ऊंट ने किस प्रकार अपना गोबर प्राप्त किया. ओके स्टूडेंट्स, स्टोरी it is a it is a very interesting story, and it describes us, and it gives a moral to us, that we should work hard, and we should help to others. Now the paragraph number first. सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन को पढ़ेंगे. द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन. संसार शुरू ही हुआ था. एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस. और जानवर मनुष्य के लिए काम कर रहे थे. देयर वाज वन लेजी एनिमल. उनमें से एक आलसी जानवर था. दैट डिड नथिंग. वो कुछ भी नहीं करता था. एंड सेड नथिंग. और ना ही वो कुछ कहता था. बट हम्फ. केवल एक ही शब्द बोलता था, हम्फ. इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. यहाँ तक कि जो चालाक जिन जो था, वो भी इसकी इस आदत से बहुत परेशान था. इन द बिगिनिंग. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस स्टोरी. सो प्लीज लिसन दिस स्टोरी एंड वॉच दिस स्टोरी केयरफुली. इन द बिगिनिंग. बच्चों, बिगिनिंग में से होता है शुरुआत करना, शुरुआत होना करना किसी चीज़ की. इन द बिगिनिंग, शुरुआत में. व्हेन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में संसार. वाज न्यू. जब संसार नया ही था. एंड द एनिमल वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन. और जानवर ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू ही किया था. देयर वाज अ कैमल. एक ऊंट था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट. हॉलिंग डेजर्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स जहाँ आवाज़ ज़्यादा होती है. तो वो चलते हैं, तो वो ऊंट जो था वो हॉलिंग डेजर्ट के बीच में रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. क्योंकि वह काम करना नहीं चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थ्रॉन्स एंड प्रिकल्स. स्टिक्स में से लकड़ी, थ्रॉन्स में से कांटे, एंड प्रिकल्स में से जो बच्चों कांटीली झाड़ियाँ होती हैं ना, वो उस चीज़ को बोलते हैं. वह खाया करता था लकड़ियाँ, कांटे और कटीली झाड़ियाँ. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम. और जब कोई उससे कुछ कहता था, ही सैड हम्फ. वह केवल एक ही शब्द बोलता था, हम्फ. जस्ट हम. केवल हम्फ. एंड नो मोर. और इससे ज़्यादा वो कोई शब्द नहीं बोलता था. Presently, the horse came to him on Monday morning. सोमवार की सुबह घोड़ा उसके पास आया. With a saddle on his back. बैक बोलते हैं बच्चे पीठ. सैडल मीन्स काठी. उसने अपनी पीठ पर ली हुई थी, काठी ली हुई थी, या उसकी पीठ पर एक काठी थी. With a and said. और कहने लगा, कैमल, ओ कैमल. ऊंट, ओ ऊंट. कम आउट. बाहर आओ. एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. ट्रॉट मीन्स होता है एक चाल, जैसे चलते हैं, दुब की चाल. ऊंट, ओ ऊंट, बाहर आओ और हमारी तरह चलो. हम्फ सेड द कैमल. ऊंट ने कहा, हम्फ. एंड द हॉर्स वेंट अवे. और घोड़ा वहाँ से चला गया. एंड टोल्ड द मैन. और आदमी को सारी बात बताई. प्रेजेंटली द डॉग कैम टू हिम. तभी कुत्ता उसके पास आया. विद अ स्टिक इन हिज माउथ. अपने मुंह में स्टिक को लिए हुए. एंड सैड. और कहने लगा, कैमल,
camel, come and fetch and carry like the rest of us. ऊँट ओ ऊँट, आओ और हमारी तरह सामान को उठाओ और लेकर चलो। फैच एंड कैरी मीन्स स्टूडेंट्स उठाना और ले जाना। हम्फ शेड द कैमल, ऊँट ने कहा हम्फ, एंड द डॉग वेंट अवे, और कुत्ता वहाँ से चला गया। एंड द टोल्ड टू द मैन, और उसने आदमी को सारी बात बताई। प्रेजेंटली द ऑक्स कैम टू हिम, तभी बैल भी उसके पास आया। विद द योक ऑन हिज नेक, अपनी गर्दन में पट्टा लिए हुए। एंड सैड, और कहने लगा कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, कम आओ एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरह खेतों को जोतो। हम्फ शेयर द कैमल, ऊँट कहने लगा हम्फ, एंड द ओक्स वेंट अवे, और बैल वहाँ से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और आदमी को सारी बात बताई। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। टुगेदर मीन्स स्टूडेंट साथ साथ। आदमी ने एक साथ साथ किस किस को बुलाया? हॉर्स को, कुत्ते को और बैल को। एंड सैड, और कहने लगा 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। 303 तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत दुखी हूँ। बट दैट हम थिंक इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन हम जो चीज़ है ना रेगिस्तान के अंदर, जो हम बोलता है केवल एक ही शब्द, वो काम नहीं कर सकता। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और अगर वो काम करता तो वो यहाँ पर जरूर होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और आपको उसके हिस्से का जो काम होगा ना, उसकी भरपाई को पूरा करने के लिए आपको उसका काम भी करना पड़ेगा, मतलब आपको दो गुना काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, जब तीनों ने ये सुना तो उनको गुस्सा आया, वे क्रोधित हुए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज, एज मीन्स होता है स्टूडेंट्स किनारा, ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, इसलिए उन्होंने रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत की। एंड द कैमल केम च्यूइंग कड, और ऊँट जुगाली को चबाता हुआ आया। एंड लाफ्ड एट दैम, और उन पर हंसने लगा। देन ही सैड, फिर कहने लगा हम्फ, क्या कहने लगा? हम्फ, एंड वेंट अगेन, और वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, तभी वहाँ जिन आया जो कि सभी रेगिस्तानों का इंचार्ज था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और उसने अपने आप को किससे लपेट के रखा था? क्लाउड ऑफ डस्ट से। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, घोड़ा जिन से कहने लगा जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, सारे रेगिस्तान के जिन, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या यह सही है कि कोई आलसी बन के बैठा रहे? सर्टेनली नॉट सैड द जिन, जिन कहने लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेल शेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा तो बताइए। देर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, एंड ही hasn't done a stroke of work since Monday morning। तो आप मुझे बताइए कि जो रेगिस्तान के, आपका जो रेगिस्तान है उसके बीचों बीच एक लंबी गर्दन वाला, लंबे लंबे पैरों वाला रहता है। एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने सोमवार की सुबह से कुछ भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट नॉट, वह चलता भी नहीं है, आगे ही नहीं बढ़ता है काम करने के लिए। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा व्यू, दैट्स माई केबल, अरे वो तो मेरा ऊँट है। वॉट डज ही से अबाउट इट, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? ही सेज हम, एंड ही वॉन्ट प्लग सेड द ऑक्स।
बैल कहने लगा, वह कहता है सिर्फ हम्फ, वह केवल एक ही शब्द बोलता है, हम्फ, और ना ही वो खेतों को जोतता भी है। वेरी गुड, सेड द जिन। जिन ने कहा, ठीक है, आई शैल हम्फ हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। जिन ने कहा कि ठीक है, मैं उसको हम्फ ही कर दूंगा, बस केवल 1 मिनट के लिए आप इंतज़ार करो। मतलब कि जिनका कहने का मतलब था कि मैं उसे हम्प कहने का सबक सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इसके नीचे कंपेरिजन चेक क्वेश्चंस हैं, वर्कशीट है आपके लिए। तो ये वर्कशीट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा। जिस वर्कशीट को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, मैं वर्कशीट रिटर्न में सेंड करूंगा आपको। उसको अपनी नोटबुक में फेयर तरीके से आप उतारेंगे स्टूडेंट्स। सो आपको कैसी लगी यहाँ तक की वीडियो? आई होप सभी को पसंद आई होगी, और इसकी स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सेफ रहें और स्टडी करते रहें, इतना वर्क करते रहें। ओके स्टूडेंट, स्टे एट होम, एट योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।